of this one-day national seminar on unraveling the partition of India. I take privilege in inviting Professor Payal Magu ma'am on stage. She is our chair for this session. Welcome, ma'am. As this session is dedicated to lived experiences, we have on stage with us Professor K.L. Johar. Alongside, I would also like to invite Sardar Atma Singh ji on stage. Please, आइए sir. Shri Jagdish Chandra Gosai ji. और श्री कृष्णानंद सागर जी। सब बच्चों और भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। Professor Payal Magu ma'am needs no introduction, but it is pertinent for the audience to know that she is the principal of Shahid Rajguru College of Applied Sciences for Women, University of Delhi. She is also the director of Campus of Open Learning and the chairman of the governing body of School of Open Learning. She has about 25 years of teaching and administration experience to her credit in the field of education planning. Recently working on gender issues, ma'am has been awarded Lifetime Achievement Award by Women's Agency for Generating Employment. You're most welcome, ma'am. I kindly request Professor Shri Prakash Singh to come on stage and felicitate Payal Magu ma'am. Professor Ravinder Kumar sir is also invited on stage. Please join, sir. Since morning we heard that a Radcliffe line changed it all. The sheer human tragedy and the intensity of savagery that accompanied partition has few parallels in human history. Unprecedented violence, genocide, displacement, and other horrors brought in tears of blood. These may be stories and narratives for many of you. But today, when you look at the stage, we actually find 4 lived people who actually are here to share their experiences as what happened in 1947. As I mentioned in the earlier session, they were kids, very small in age. But वो छाप जो भी बंटवारे की हुई, जो उनका पलायन हुआ, वो कैसे उनके जीवन को परिवर्तित कर गया, कैसे सब कुछ उथल पुथल हो गया, आज वो आपके समक्ष अपनी बात रखेंगे। इस सेशन का चेयर पायल मागू मैम करेंगी। थोड़ा सा परिचय के लिए बता दूं, हमारे साथ प्रोफेसर के.एल. जोहर सर हैं, who was born in the year 1936 in village Het Fakiria, Sargodha, Pakistan. He belonged to a family of cotton merchants. In the most devastating of the situations, he had to flee to Amritsar from Lahore via the Wagah border in a military truck. During the rough phase of his life, he assumed many roles, including being a street vendor, hawker, and even a rickshaw puller to support his family. His mother has been his biggest support to his education that enabled him to reach the pinnacle of his career. Professor Johar has authored many books. He was the Pro-Vice Chancellor of Kurukshetra University and Founder Vice Chancellor of Guru Jambeshwar University of Science and Technology, Hisar. Currently, Professor Johar resides with his family in
Noida. We also have with us Shri Krishnanand Sagar, who was born in the year 1941 at Kasur, Lahore, Pakistan. He had to face real struggle in crossing the border. He has been a Sangh Pracharak and the founder of Suruchi Prakashan. He's also the founder of Jagriti Prakashan and still oversees its day-to-day course. He has a 4-volume book collection that contains more than 350 interviews of partition victims to his name. He also resides in Noida. Welcome, sir. We also have the honor of having with us Shri Jagdish Chandra Gosain ji, who was born in 1932 at Dera Ghazi Khan, Pakistan. His father worked in the railways, and by that virtue, when the partition happened, he was offered a job in the railways in due course. His has been a tough journey. Incidentally, as compensation, he also received a small house in Mukherjee Nagar, Delhi, where he still resides. आपका स्वागत है सर। साथ में हमारे बने हुए हैं सरदार आत्मा सिंह जी, जिनका जन्म हुआ 1932 पिंडी, लाहौर में। His father worked at the airport in Miamir. When he was just 16 years old, one evening, some Muslims came on horses to kill him in the village. To save himself, he ran into the fields. His father, who worked at the airport, quit his job to protect his family. He fled from his village to reach Kasur, where he spent 2 to 3 days at the railway station. Then the army escorted him and his family to reach to Firozpur. He was told that whichever house he found vacant, he could settle in, and it would become his own. Then the story followed. I hand over now the chair to Professor Payal Bagu ma'am to take the proceedings further. आप सभी को नमस्कार। आज जब हम पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे मना रहे हैं, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, और हमारे साथ में 4 ऐसे लोग हैं जो उस त्रासदी से निकलकर आज यहाँ तक पहुँचे हैं, और उन्होंने वो समय भी देखा है जब विभाजन हुआ था, और आज का समय जब हम यहाँ एक स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, ऐसा समय भी उन्होंने देखा है। और हम इन सभी का एक एक बार जो इन्होंने जिस विभाजन के समय पे जिस विभीषिका से गुज़रे हैं, उनका एक छोटा छोटा नैरेटिव हम यहाँ पर लेंगे। तो हमारे बीच में प्रोफेसर के.एल. जौहर हैं, जो एक रिक्शा पुलर से वाइस चांसलर तक का सफ़र उन्होंने विभाजन के बाद तय किया। हमारे बीच में श्री कृष्णानंद सागर जी हैं, जो कि पार्टीशन विक्टिम तो रहे ही, लेकिन उसके बाद में इन्होंने बहुत सारे पार्टीशन विक्टिम्स का एक नैरेटिव भी एक बुक्स में लेकर आए और प्रकाशन का काम किया। हमारे बीच में आत्मा सिंह जी भी हैं, जो कि पार्टीशन विक्टिम रहे हैं, और श्री जगदीश चंद्र गोसाई जी हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं पार्टीशन के बाद में, रेलवे में इन्होंने जॉब भी की है। ये सब हमारे साथ हैं। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के मौके के ऊपर। पार्टीशन के बारे में जितना कहा जाए वो कम है। मुझे लगता है कि शायद विश्व की वो सबसे बड़ी एक मूवमेंट थी, ह्यूमन मूवमेंट, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और उसके बाद जो उनके ऊपर गुजरी, बहुत रिच इलाका था, बहुत सारी मिलें थी। अभी जौहर जी ने जो कहा कि उनके बारे में बताया गया कि जो कॉटन का वहाँ पर काम होता था, वो इनके परिवार के पास वो काम था। मैं भी उसी परिवार से बिलोंग करती हूँ कि जो उस समय जिनकी कॉटन मिल्स थी वहाँ पर। और अभी आपको ध्यान होगा कि पेरिस ओलंपिक्स में एक पाकिस्तान का लड़का जिसको गोल्ड मिला, वो खानेवाल से था। मेरी माँ जो अभी 92 साल की हैं, और वो टीवी देख रही थी, और उसमें जो उसका घर दिखाया जा रहा था खानेवाल में, उसको देखकर बहुत देर तक वो रोती रहीं, क्योंकि उनकी जो मिल्स थी, जो उनका बचपन गुजरा, वो खानेवाल में गुजरा। और बताते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह का इसका घर दिखाया जा रहा है, वहाँ तो बड़े अमीर लोग रहते थे, वहाँ तो
ऐसा था कि कई कॉटन मिल्स थी, वहाँ से कॉटन के गट्ठर जब बनते थे उनको कॉटन में कन्वर्ट किया जाता था, वहाँ से ट्रांसपोर्ट होता था बॉम्बे में, वहाँ से एक्सपोर्ट होता था इंग्लैंड की तरफ। बहुत अमीर लोग रहते थे। इसका घर कैसा सा और इसके आसपास कैसा सा दिखाया जा रहा है, कहीं पहचान में नहीं आ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि उस इलाके को छोड़कर जहाँ पर बहुत अच्छा कारोबार चलता था, जहाँ पे शायद कहना चाहिए, गलत नहीं होगा, दूध घी की नदियाँ बहती थी, जहाँ पे परिवारों के पास खूब सोना था, वहाँ से जब वो लोग अपना सब कुछ छोड़कर, एक एक चीज़ छोड़कर, और जो फिज़िकल एसेट्स थे वो तो अलग बात है, लेकिन जो चीज़ें वो किसी की परिवार में किसी की बहन छूट गई, किसी की माताजी छूट गई, किसी के पिताजी छूट गए, कुछ लोग मारे गए, छिन्न भिन्न जो परिवार यहाँ पर आए, और आज आने के बाद यहाँ पर दोबारा से उन्होंने अपने आप को एकत्रित करके इकट्ठा किया। भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उन लोगों का है, भारत के विकास में भी उन लोगों का कंट्रीब्यूशन है। तो उन लोगों का स्वागत करते हुए मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है, और मैं सबके बीच में ना आते हुए मैं शुरू करूंगी कि ये सभी लोग अपनी अपनी एक बार कहानी बताएंगे। तो जो हमारी जनरेशन यहाँ बैठी है जिसने वो विभाषण विभीषिका नहीं देखी है, तो वो उनको ये पता चलेगा। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ सरदार आत्मा सिंह जी को कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या चीज़ें वो हमें बताना चाहते हैं, वो यहाँ पर आए और इस विषय में अपनी बात रखें। साथियों, बच्चों और भाइयों, सबको सत श्री अकाल और राम राम। विभाजन का दुख तो प्रोफेसर कपूर साहब ने सबको पहले बता दिया है। जो उन्होंने बताया है वो बिल्कुल ठीक था। असी लाहौर रहते सी, मेरे पिताजी एयरपोर्ट पे काम करते थे। मियाँ मीर छावनी अंग्रेज़ों का एक ही और एयरपोर्ट था। वहाँ से उनको 13 तारीख को पता चला कि यहाँ कोई गड़बड़ होने वाली है। तो फिर वो सानू परिवार नू लेके एक छोटा जिहा पिंड है, वो भी डिस्ट्रिक्ट लाहौर में है, पिंडी नाम है उसका, उत्थे आ गए। उत्थे असी रहना शुरू किया। तो बस 14 तारीख नू भी गड़बड़ माड़ी जोई, पर 15 नू तो उन्होंने ना, क्या बताऊँ, उनका नाम नहीं लेना चाहिए किसी का, बहुत बुरा हाल किया। घोड़ों पे बैठ के, तलवारें ले के, जहाँ मारा, ज़्यादातर वो गर्दन ही काटते थे सब। साढ़े पिंड के अद्धे आदमी तो उन्होंने मारते होने। कोई 300-350 घर थे हमारे गांव में, तो आधे से ज़्यादा आदमी उन्होंने मार दिए। असी सवेरे जा करना कर खेतों में छुप जाना या दरख्तों पे चढ़ जाना। और उन दिनों बचाया हमें बारिश ने। लगातार 2.5 महीने बारिश होती रही, जैसे आजकल दिल्ली में हो रही है, आ गई चली गई, आ गई चली गई। अगर बारिश ना होती तो एक भी आदमी बच के नहीं आता। ये बारिश की मेहरबानी से आए हैं। चलो हम रात को दरख्तों पे चढ़ गए, खेतों पे चढ़ गए। फिर किसी तरह से कोई 4 मिलिट्री वाले आ गए। उन्होंने साढ़े पिंड के जोड़े बचे आदमी से उन्होंने इकट्ठा किया। इकट्ठा करके सानू कंगनपुर ले आए। उत्थों उन्होंने सानू ट्रेन च बसा के कसूर भेज दिता। रस्ते च असी देखा कोई इधर मरिया पे, कोई उधर मरिया पे, कोई उत्थे मरिया पे। वो रस्ते च एक नहर आती सी बड़ी चौड़ी, उन्होंने पंजाबी घारा कहते सन। वो लाशां रुड़ियाँ जा रही सन। पुछो ना बुरा यार। ਜਿਹੜਾ इधरों फिर ट्रेन जाती सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ खून ही खून, दरवाजियां चो भी बाहर बग रहा ਹੁੰਦਾ ਸੀ। एक ट्रेन आई, सानू कहते चढ़ जाओ, ਉਹਦੇ 'ਚ बैठण ਨੂੰ जगह नहीं सी, लाशां ही लाशां पईयां सी। असी उतर गए, बैठे, फिर बैठे रहे। फिर ट्रेन आई, ਉਹਦਾ भी यही हाल। फिर ट्रेन आई, ਉਹਦਾ भी हाल। असी 4-5 दिन कसूर प्लेटफार्म से भुखे ही बैठे रहे। 400-500-600 आदमी होवांगे असी।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਛੋੜਤਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਤਰੇ, ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਵੰਗਰ ਖਾਧਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਛੋੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲੱਡ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਢੇ 8 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਰੁੜ ਕੇ, ਬਦਬੂ ਫੈਲ ਗਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਘਰ ਕੋਲ ਛੋੜ ਕੇ ਪੈਦਲ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਥੱਲੇੋਂ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੁਕਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 2-3 ਦਿਨ ਰਹੇ ਉੱਥੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲੰਗਰ ਖਾਧਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮਲੋਟ ਚਲੇ ਗਏ। 18-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀ ਛੋਟੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀ ਵੱਡੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ ਮੈਥੋਂ ਵੱਡਾ। ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ 5 ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਮੈਥੋਂ ਭੈਣ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੰਨੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁਰਕੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਮਾਦ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਰਕੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਬੜਾ ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਰੋ ਰੋ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁਕਤਸਰ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ TB ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਮਰ ਗਈ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਰ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਛੋਟੀ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੱਡਾ PAP ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹਵਲਦਾਰ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਰਫਲ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਫਲ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 49 ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਗਏ ਵੀ ਲੱਕੜੀ ਲੈ ਆਈਏ, ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਤਾਂ ਬਣਾਈਏ। ਉਹ ਕੁਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਕੁਹਾੜੀ ਉਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡੈਡੀ ਉੱਥੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਡਾਕਟਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਸੌਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਸੌਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਸੌਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਬਚਪਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਕਲੀਨਰ ਰੱਖਤਾ। ਮੈਂ ਕਲੀਨਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਟਰੱਕ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫਰੂਟ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਸ ਬੰਬੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ। ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ 20-22 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਰਸਡੀ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁੱਲ ਮੁਕਲ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਫੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੁਕਦਾ ਰਿਹਾ। 2-4 ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। 2-4 ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕੋਈ 29 ਕੁ ਸਾਲ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਤੂੰ।
मैं कह मैं किनू कहां, ना मेरा माँ ना प्यो ना भैन ना भरा, तो मैं किनू कहां बई मेरा ब्याह कर दो। कहते अच्छा तुझे चक्कर लगा के असी तेरे वास्ते रिश्ता देख लिया। चक्कर लगा के आया, उन्होंने मैनू अपनी लड़की नाल ही रिश्ता कराता। वो वाइफ ने जिहदे नाल मेरा रिश्ता आया वो मेरे सामने पैदा हुई, हुण मैं अपनी गोदी च खिडांदा रहा। 16 साल मेरे नाल छोटी सी। चलो हो गया लगे इन्हों फिर मैनू मेरा सांढू रहिंदा सी दिल्ली, ये सानू दिल्ली ले आया। मैं वो पंजाब च हुंदा सी। इत्थे लिया के इन्हें मैनू एक कार ते नौकरी लवाती। मैं क्या भी मेरे को तो कार चलती नहीं, छोटी जी है, मैं कि मैं चलावांगा। मेरे आप क्योंकि मैं वड्डा चला वड्डी गड्डी चलांदा सी। उन्हें की कीता इन्हों लंदन विचों इंग्लैंड चों आ गई वैकेंसियाँ ड्राइवरां दियां। मैं पासपोर्ट बनवाया, मेरा वीज़ा भी लग गया। इधरों मेरा लड़का हो गया। वो लड़का सी मेरा उन्होंने दिनों कुछ 1.25 साल का होना, 1.5 साल का, 62 जो होया सी। तो वो मेरा लंदन का वीज़ा लग गया। मैं क्या भी मैं लंदन तो जा नहीं सकता, इनू मैं कित्थे छोड़ांगा, ये कल्ली है, मकान भी किराए का। उन्होंने सानू उतों होर पड़ोसियों से जोर पान लगे जाओ जाओ जाओ। मैं गुस्से च आके अपना पासपोर्ट वीज़ा सब फाड़ता। मैं क्या मैं नहीं जाना। वही लड़का अज मेरा अफ्रीका इंजीनियर है, सिंगापुर की फर्म है, वो 4-5 लाख रुपये महीना कमांदा। पोतरी भरा भरू के डॉक्टर बनाई, वो डॉक्टर है, वो बंगलौर है। एक पोतरा मेरा वड्डा वो कनेडा च, वो बैंक च इंजीनियर है, वो भी 3-4 लाख रुपये कमा लैंदा है। मैनू भी 15-20 लाख रुपये महीना 20,000 रुपये महीना भेज देंगे है। तो मैं शुरुआत जिंदगी की रिक्शा चलाने तो की, साइकिल रिक्शा। उतों फिर अगर वादा वादा ड्राइवरी तक आया। तो हुण फिर भी मैं अजे भी 93 साल मेरी उम्र में दिल्ली में 3 व्हीलर स्कूटर चलाना। दिल्ली में अज भी मेरा स्कूटर खड़ा है। सो ये तो मेरी जिंदगी की कहानी है जी। लाशां की तो पुछो ना, बहुत बुरा हाल है। पता नहीं किमें वो प्रभु ने बचा के भेज दिता, यह गल समझ आई नहीं। बस मैं तो इन्नी बेनती करनी। हमारे बीच में प्रोफेसर KL जौहर हैं। पार्टीशन विक्टिम की तरह ही वो हमारे बीच में भी आज मौजूद हैं। उन्हें थोड़ा सा जल्दी जाना है, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। कब तक मैंने कहा था लगा दे रहे हैं इसको। The chairperson of this afternoon session, Dr. Payal Goyal ji, Payal Bango ji, Sardar Atman Singh ji, Sagar Sahib, Gusain ji, Shri Prakash ji, Professor Ravinder Kumar, and all this elite gathering in the seminar hall, in the conference hall of Delhi University, Delhi. I thank CIPS for inviting me to talk to you this afternoon. You are lucky to be working in University of Delhi or in colleges affiliated to Delhi University, because you enjoy an independent status. I know I worked in a university in Haryana as Vice Chancellor, Guru Jambheshwar University of Science and Technology. In the states, the chief ministers generally believe the universities to be another department of the state government.
But in Delhi, fortunately, the case is different. You have a status, and luckily, you have a vice chancellor in the person of Professor Yogesh Kumar, with whom I had the pleasure of working in Gurjabeshwar University of Science and Technology. I was the vice chancellor, and he was professor and head department of computer science and engineering. आत्मा सिंह जी ने अभी आपको अपने हालात से अवगत कराया। मैं भी छोटी सी कहानी बयान करता हूँ आपके सामने। मेरी उम्र 10.5 साल की थी। मुझे इस बात की निहायत खुशी है कि आत्मा सिंह 93 में भी एक्टिव हैं। मैं उतना एक्टिव नहीं हूँ। मैं 88 का हो गया हूँ, लेकिन मेरे से बड़े यहाँ सागर साहब भी बैठे हैं जिन्होंने पुस्तकों का भी अध्ययन किया और उनको फिर पब्लिश भी करवाया। गुसाई जी भी बैठे हैं, वो भी अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करेंगे। हम एक गांव में रहते थे। मेरा फादर एक कॉटन मर्चेंट थे, दादाजी रहते थे। बड़ा बुरा परिवार था। गांव झेलम नदी के पास हेड फकीरिया नाम था। लेकिन मेरे फादर क्योंकि बहुत एक अच्छे संपन्न परिवार से थे, तो उन्होंने मुझे got me admitted in one of the best public schools at district Sargodha proper. I was in the 5th class when one fine morning in July 1947, my father came to the school. I was in the hostel और कहा बेटा घर चलना है। हमें सब पता था क्योंकि we were studying in an elite school, तो खबर रहती थी कि अब विभाजन हो गया है, the decision has been taken कि इंडिया से पाकिस्तान क्रिएट होगा। There will be 2 separate entities, India and Pakistan. पहले इंडिया था। जब हम इधर आए, बड़े हुए, सारी कहानी इतिहास पढ़ा, तो मैं आपको 5 शब्दों में ये भी बताना चाहता हूँ कि आज हम नौजवान जो मोस्टली साल में बैठे हैं या स्टेज पे भी बैठे हैं, आत्मा सिंह और गुसाई जी, सागर, वो सोचते हैं कि आज़ादी जस्ट केम फॉर द आस्किंग। नो, our forefathers, our ancestors had to fight very hard to attain this independence. गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से आए। उन्होंने सत्याग्रह पॉलिटिक्स शुरू किया, which ended in क्विट इंडिया मूवमेंट, और लाखों लोग जेल की यात्राओं में गए निडरता से। उधर हजारों नौजवानों ने अपनी जान को अपनी तली पर रखकर शहादत का रास्ता चुना, चाहे वो राम प्रसाद बिस्मिल हो उत्तर प्रदेश में, उसके 3 साथी हों जिनको 19 दिसंबर को फांसी के तख्ते पर जला दिया, या चंद्रशेखर आज़ाद हों जिन्होंने अपनी पिस्टल की आखिरी गोली अपनी कनपट्टी में डाल के अपने आप को मार डाला, क्योंकि उन्होंने कसम ले रखी थी कि मुझे किसी गोरे के हाथों या ब्रिटिश पुलिस के हाथों नहीं मरना। वो आज़ाद थे और आज़ाद ही रहे। सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 अगस्त 1931 को फांसी पे झूल जाना पड़ा लाहौर सेंट्रल जेल में। जब उनको फांसी के तख्ते के पास ले जाया गया
तो जेल वार्डन, मजिस्ट्रेट या बाकी लोग खड़े होते हैं। उन्होंने कहा देखो अलर्ट जवान है, कोई 21 साल का है, कोई 22 साल का है, कोई 23 साल का है, पागल है ये, बिगड़े हुए हैं ये। तो उनसे पूछा कौन सबसे पहले फांसी चढ़ेगा, तो सुखदेव ने कहा मैं। लेकिन सुखदेव ने फांसी के तख्ते पर झूलने से पहले कहा आप हमें बिगड़े दिमाग कहते हो, आप हमें पागल कहते हो, इन बिगड़े दिमागों में घनी खुशबू के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। अब आप मेरे प्यारे बच्चों, आप ये अंदाज़ा लगाओ कि फांसी से 15-20 सेकंड दूर कोई नौजवान इस तरह के शेर बोल सकता है। निडरता से शहीदों ने अपनी जान कुर्बान कर दी इस देश के लिए। उधर साउथ एशिया में जाकर सुभाष चंद्र अलग नारा लगा रहे थे। याद रखिएगा उस वक्त हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख सब एक थे, इकट्ठे होकर आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। कोई फ्रेगमेंटेशन नहीं थी, भाईचारा था। आप जनरली आज भी सुनते हो जब ट्रेड यूनियंस अपना काम करती हैं, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले हजरत मोहानी, जो कानपुर के रहने वाले थे, उन्होंने 1921 में लगाया था। आज आप गजल सुनते हैं जो राम प्रसाद बिस्मिल और उसके साथी लखनऊ में जब जेल में जब कोर्ट में उनकी सुनवाई होती थी तो वो आधा घंटा कोर्ट की सुनवाई नहीं होने देते थे, क्योंकि वो नज़म पढ़ते थे, सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये नज़म बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखी थी, जो पटना के रहने वाले थे, जिसको पॉपुलराइज राम प्रसाद बिस्मिल ने किया। इनकलाब जिंदाबाद के नारे को भगत सिंह ने पॉपुलराइज किया। और उधर सुभाष चंद्र बोस साउथ ईस्ट एशिया में 6 जुलाई 1944 के दिन जब अपनी आज़ाद हिंद फौज को लेकर सिंगापुर रेडियो से भाषण दिया, दिल्ली चलो, तो उस वक्त उन्होंने एक भाषण दिया जो बड़ा मार्मिक है, सुनने वाला, नेट पे अवेलेबल है। उन्होंने अपने भाषण में आखिर में जाके ये कहा, बट ओ फादर ऑफ द नेशन, वी आर मूविंग इनटू इंडिया विद आज़ाद हिंद फौज, बट without your blessings we shall not be able to do well. फादर ऑफ द नेशन गांधी जी को सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा 1944 में। और याद रखिएगा, आज हम जय हिंद कहते हैं ना, अब 15 अगस्त को कल मोदी जी भाषण देंगे तो उसके बाद वो बोलेंगे जय हिंद, और जय हिंद का नारा भी सुभाष बोस ने दिया था। और फिर गीत गाया जब चले, कदम कदम बढ़ाए चल, खुशी के गीत गाए चल, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए चल। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए चल। आज कितने लोग हैं जो अपनी सब संकीर्णताओं से उठकर सिर्फ कौम की सोचते हैं, नेशन की सोचते हैं। इस बात को ज़रा सोचिए। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि पार्टीशन तो आई, पार्टीशन आज़ादी पार्टीशन को लेके आई, और पार्टीशन से पहले क्या हुआ, इसमें हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, तब आज़ादी मिली। लॉर्ड माउंटबेटन बहुत क्लेवर वायसराय था, इंडिया का लास्ट वायसराय। उसने
डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और पार्टीशन हो गई। मेरे फादर मुझको लेके गांव में चले गए। अगले दिन सुबह एक मुसलमान जो एल्डरली मुस्लिम था गांव का, वो आया, कहने लगा मेरे ग्रैंडफादर को, रल्ले शाह, बड़े अफसोस की बात है कि बहुत जगह हिंदुओं को मारा जा रहा है, आपका यहाँ रहना सेफ नहीं है, आप कल सुबह के लिए तैयार हो जाओ, बस रात आपके पास है। औरतें रोई, क्या कर सकते थे। सुबह 6 टांगे आ गए, मंडी फुलर वन पास में 10 किलोमीटर पे था, वहाँ ले गए। 2 टांगे मुसलमानों के आगे, 2 पीछे, 3 टांगे हमारे बीच में, और हम मंडी फुलर वन पहुँच गए। वहाँ बहुत सारे रिफ्यूजीज डिफरेंट गांव से आके बसे हुए थे। इंडियन आर्मी का पहरा था वहाँ पर। कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, एक दिन ये अफवाह उड़ी कैंप में कि भाई मिलिट्री के ट्रक जा रहे हैं 50 इंडिया, यदि कोई उनमें जाना चाहे तो जा सकते हैं। हमारे परिवार ने ये निर्णय किया कि मुझे, मेरी उम्र उस वक्त 10.5-11 साल की थी, कि एक मेंबर तो बच जाए, इसलिए मुझे मिलिट्री ट्रक में जाने का उन्होंने फैसला किया। एक और हमारा और रिलेटिव था, उसको भी। तो हम मिलिट्री ट्रक में बैठकर 6 दिन के सफ़र के पास अमृतसर आ गए। हॉलोकॉस्ट था, जीनोसाइड थी, इट वॉज ए गैस चैम्बर, जैसे हिटलर ने किया था ना सेकेंड वर्ल्ड वार में ज्यूज के साथ, वही हाल था। देयर वॉज लार्ज स्केल arson, loot, firing, kidnapping, raping of young women. ये नहीं मैं कहता कि एक साइड पे थी, ऑन आइदर साइड ऑफ द डिवाइड। आज जब हम एस्टिमेट पढ़ते हैं तो तकरीबन 6.5 लाख मुसलमान उस वक्त पाकिस्तान गए और 4.5 लाख हिंदू शरणार्थी वेस्ट पाकिस्तान से, पंजाब से इंडिया में आए। हम अमृतसर पहुंच गए ट्रकों में और इंतजार करने लगे कि कब ट्रेन हमारे बाकी परिवार को लेके आएगी। एक दिन गोल्डन टेम्पल में खाना खाते थे, बड़ा लंगर था शानदार, कुछ थोड़ा बहुत काम भी करने लगे। एक और मेरे साथ जो साथी था, रेलवे ट्रेन पे बारी बारी जाते, मैं जाता तो दिखता कि म्यूटिलेटेड बॉडीज, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी की टांग नहीं है, कोई डेड बॉडी है। रेड क्रॉस लोग बिजी हैं लोगों को उतारने में, चाहे वो पाकिस्तान से गाड़ी इंडिया आ रही हो या इंडिया से पाकिस्तान जा रही हो। अमृतसर हमारी आंखों के सामने तलवारें लेके लोग मुसलमानों के सिर काट देते थे। इसी तरह से कटे हुए सिरों को लेकर गाड़ियां आती थी पाकिस्तान से इंडिया में। बुरा हाल था। एस्टिमेटेड 12 से 15 लाख लोग पंजाब से इंडिया में आए और इट इज़ एस्टिमेटेड कि बहुत लोग मारे गए इस त्रासदी में। ये एक ऐसी ह्यूमन ट्रेजेडी थी जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी मानी गई है। जर्मनी में ज्यूज के साथ जो हुआ उससे भी बड़ी त्रासदी, बहुत लोग मरे। हेल था, एक नरक था, लेकिन फिर भी अपनी कहानी बताते हुए एक दिन ऐसा आया, माँ बाप आ गए, हमें रिफ्यूजी कैंप कुरुक्षेत्र में भेजा गया। मेरे फादर की अर्ली 1948 में डेथ हो गई।
उनकी उम्र उस वक्त 34 इयर्स की थी और मेरी माँ की उम्र 28 साल की थी। हम 4 भाई थे, जल्दी शादी हो जाती थी। फादर ने माँ को कहा मरने से पहले कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना। माँ ने अपने धर्म को निभाया और हम चारों भाइयों को अच्छी एजुकेशन दी। मैंने मैट्रिक पास की। जब मैं मैट्रिक पास कर चुका तो जमुनानगर में हम रहते थे, जमुनानगर में कॉलेज नहीं था। मेरी माँ एक दफ़ा सुबह मुझे लेकर गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज अम्बाला कैंट पहुंच गई। अम्बाला कैंट पहुंचकर प्रिंसिपल जसवंत राय थे, मैं और मेरी माँ प्रिंसिपल के कमरे में दाखिल हुए, अपनी दास्तान सुनाई, अपनी कहानी बयान की। प्रिंसिपल साहब ने घंटी बजाई, एक क्लर्क को बुलाया, कहा इनको फलां प्रोफेसर के साथ ले जाओ, इनसे कोई अभी पैसा लेना नहीं, फॉर्म लेकर इनको दाखिल कर लो और बाद में भी नॉमिनल फीस लेनी है। मैं 2 साल पढ़ता रहा। उस वक्त इंटरमीडिएट होता था पहले, फिर बीए। जब दिसंबर का महीना आया, दिसंबर 1955 की बात कर रहा हूँ, 55 की, दिसंबर 55 की। मैं इंटरमीडिएट में था। एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था कि मेरे नाम के सामने 80 रुपये। वो डिफॉल्टर्स की लिस्ट थी जिनकी फीस की थी, बाकियों के भी थे लेकिन थोड़े थोड़े, किसी के 20, किसी के 10, किसी के 15। वो 80 रुपये 2 सालों की फीस में और एग्जामिनेशन फॉर्म के पैसे। मैं अपने दोस्त के पास गया, लक्ष्मण था उसका नाम, उसने कमरा लेके अम्बाला कैंट में रहता था। मैंने कहा लक्ष्मण 80 रुपये देना है यार। वो भी गरीब था। कहने लगा फिर क्या करना है? मैंने कहा यार अब अगर माँ को बताऊंगा ना तो उसको दिल टूट जाएगा। 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं कॉलेज में पढ़ाई छोड़ दूं तो भी उसका दिल टूटेगा, या मैं कोई काम धंधा यहीं करूं और मैं कॉलेज की फीस दूं। उस वक्त 8 आने रोज पर किराए पर रिक्शा मिलता था। मैं दिन में कॉलेज जाता और रात को मैं रिक्शा चलाता। मैंने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। मुबारक है सिद्धार्थात्मा सिंह जी, जो आप भी अपने रिक्शा चलाते हैं दिल्ली में। रात के 2 बजे थे। एक कपल फ्रंटियर मेल से उतरा, स्टेशन पे रिक्शा खड़ा था। नौजवान रिक्शा पुलर को देख के वो मेरे पास आ गए। मैंने कहा वेयर यू गो सर? तोप खाना। बट दे वर सरप्राइज्ड दैट द बॉय स्पीकिंग इन चेस्ट गुड इंग्लिश। हाउ कम दैट इज पुलिंग अ रिक्शा? Major Mrs. Khullad said, it is raining. I said, no ma'am, it's only drizzling, but it rained very heavily yesterday and day before. They were further surprised and became inquisitive. और पूछ रहे हैं कि भैया तुम रिक्शा क्यों चला रहे हो? I was reluctant. They were insistent. I ultimately told them that I have to pay my college fees of 80 rupees. और मैं इसलिए रिक्शा चला के वो पैसे अदा करना चाहता हूँ। हम वेस्ट पाकिस्तान से आए। तोप खाना उतारा, 2-4 आने जो भी उस वक्त सवारी की कीमत थी ली, फिर स्टेशन पे रिक्शा चलाने के लिए अगली सवारी के इंतजार में। अगले दिन 11 बजे प्रिंसिपल जसवंत राय ने मुझको अपने ऑफिस में बुलाया। आजकल प्रिंसिपल किसी को बुलाए ना तो कोई डर नहीं।
लेकिन उस वक्त तो ऐसी हालत हो जाती थी कि पता नहीं क्या गुनाह कर दिया आज। डरते डरते प्रिंसिपल साहब के दफ्तर में गया। He got up from his seat, embraced me tightly, kissed me on my forehead and said, I am proud of you, my boy, I am proud of you. मैंने सोचा कि प्रीवियस इवनिंग में मैंने 2 गोल किए हैं फुटबॉल क्लब अपने कॉलेज की तरफ से, इसलिए मुझे शाबाशी दे रहे हैं। उन्होंने अल्टीमेटली बताया कि मेजर खुल्लड़ आए थे जिनको तुमने रात को 2 बजे तोप खाने पहुंचाया, वो 80 रुपया कॉलेज में जमा कर गए। झगड़ा असली अब शुरू हुआ। देखिए एक ऐसा नौजवान जो रिक्शा चला रहा है 80 रुपए देने के लिए, और उसकी हमाकत समझो, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट समझो। मैंने कहा प्रिंसिपल साहब मुझे तो 80 रुपए लेने नहीं है। क्यों भाई? मैंने कहा जी मैं तो 25 रुपए कमा भी चुका हूं और बाकी आपकी फीस का पैसा दे दूंगा, आप निश्चिंत हो जाओ। 15 मिनट बहस हुई। मैं पोलाइट था, प्रिंसिपल साहब अफेक्शनेट थे। उन्होंने कहा बेटा फिर एक सोल्यूशन बताऊं, मान जाना। मैंने कहा सर काइंडली। उन्होंने कहा देखो बेटा तुम एक अच्छे स्पोर्ट्समैन भी हो, अच्छे स्टूडेंट भी हो पढ़ाई में, हम ये 80 रुपया कॉलेज में डोनेशन के रूप में ले लेंगे और आपको एक अच्छे स्पोर्ट्समैन और एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में हम आपको स्कॉलरशिप देंगे और वो एडजस्टमेंट होती रहेगी। आप जो रिक्शा चलाते हो वो अपना टाइम भी पढ़ाई में लगाओ। मैं अपने इस एक्सपीरियंस को बिल्कुल कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। बाद में जब मैं वाइस चांसलर बना 1995 अक्टूबर में हिसार में, तो नाम नहीं लूँगा, एक ऐसे चीफ मिनिस्टर थे जो समझते तक यूनिवर्सिटी एक दूसरा डिपार्टमेंट है। उससे पहला जो चीफ मिनिस्टर था उन्होंने उनकी रजीम में मैं अपॉइंट हुआ था, वो सोचते थे ये सब खराब है अपॉइंटमेंट्स। मैंने उनको अपनी रिक्शा पुलिंग वाली कहानी सुनाई। मैंने कहा जब मैं उस मोमेंट को याद करता हूँ तो उसको कभी नहीं भुला सकता। जितनी खुशी मुझे रिक्शा चलाने वाले मोमेंट से हुई जिंदगी भर, आज भी याद करता हूँ तो आंखों में आंसू तो आ जाते हैं। लेकिन महसूस करो that you have learned to be a self-respecting man, a woman all your life. मैंने कहा चौधरी साहब ये वाइस चांसलरशिप क्या चीज़ है, but I cannot barter away the independence of the university for the sake of more grants. Do what you like. If you want me to resign, I will do that. But I will not fall prey to your dictates with regard to recruitments. I will make recruitments on merit, come what may. There is a selection committee which consists of professors from Delhi University, Aligarh University, and so on. That is the end of it. If you want me to be the Vice Chancellor, I shall remain so. If you want me to quit, I will quit with no regret or nervousness in my mind. Anyway, a compromise was arrived at. I went back to my university और वो इंसिडेंट मुझे याद रहा। बीए पास किया। बीए पास करने के बाद यमुनानगर गए तो यमुनानगर में पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं थी, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सहारनपुर जाना पड़ा रोज। पोस्ट ग्रेजुएशन करके मुकंदल नेशनल कॉलेज यमुनानगर में था, वहाँ नौकरी की 20 साल। उसके बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में प्रो वाइस चांसलर बना।
फिर 3 साल के लिए वाइस चांसलर बना, 6 साल घर से बाहर रहा यमुनानगर से, वेंट बैक टू यमुनानगर, रिमेन्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। 1998 में जब रिटायर होके गया तो 2008 तक मैं एक संस्था के साथ एजुकेशनल फील्ड में काम करता रहा। उसके बाद मेरे बच्चों ने, विक्रम और विवेक ने, वहीं अंबाला के निकट अधोई एक गांव है बराड़ा के पास, एक पॉलिटेक्निक की संस्था खोली, वो चलाई, मैं उसमें एक्टिव रहा। अब विक्रम वहाँ एक रेजिडेंशियल स्कूल, मेरा बड़ा बेटा अपना बिजनेस करते हैं नोएडा में, भगवान की बड़ी कृपा है, वहाँ एक स्कूल चला रहा है रेजिडेंशियल, गुरुकुल पैटर्न पर। 1200 विद्यार्थी हैं, बहुत अच्छा नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे स्कूल चला रहा है। जब मैं 2.5 साल पहले बीमार हो गया तो मेरे बच्चे मुझको नोएडा ले आए अपने पास रहने के लिए। बहुत अच्छी सुथरी नेक बढ़िया जिंदगी गुजारी, और अब यहाँ नोएडा में 2.5 साल से रहता हूँ। लेकिन मुझे भी पता है, मेरे बच्चों को भी पता है दैट आई कैन नॉट आइडल अवे माई टाइम। मुझे शुरू से ही लिखने का बहुत शौक रहा। अब मैं अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही, कुछ लोग बैठे होंगे जो फंक्शन में आए होंगे 8 मई को, और उससे पहले 13 जून को लास्ट ईयर मेरी 3 किताबों का विमोचन तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ है। लास्ट जो 8 मई 1924 को ही हुआ, 2024 को ही, वो किताब रूपा पब्लिकेशंस में छापी, इंडियाज ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर्स 51 एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरीज बाय डॉक्टर के.एल. जौहर। प्रोफेसर योगेश सिंह ने उसको रिलीज किया, प्रिजाइड किया। और मुझे मिस्टर घोष हैं जो रूपा पब्लिकेशंस के हेड हैं, पब्लिकेशन डिवीजन के, उनका फ़ोन आया कि आपकी ये किताब इज़ ए वेरी गुड बुक, इज सेलिंग वेरी नाइसली। लेकिन मैं पिछले 1 साल से एक और किताब पे काम कर रहा हूँ, और उसका सब्जेक्ट मैटर है 100 रेवोल्यूशनरीज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। 100, ये किताब सितंबर या अक्टूबर में रिलीज होगी। करना चाहता हूँ, कर लगा रहता हूँ। मेरा कहने का मतलब यह है कि आई एम नॉट वेल, आई एम 88, आई एम नॉट लाइक आत्मा सिंह, ही इज फिट एंड फाइन मेडिकली, आई एम क्लोज टू blindness, I have no vision in my right eye, लेफ्ट आई में पार्शियल विजन है, चल फिरने में मजबूरी है, डायबिटिक न्यूरोपैथी का पेशेंट हूँ। लेकिन आखिरी बात कह के ख़त्म करता हूँ कि मेरे बच्चे और मेरी डॉटर्स इन लॉ आर लाइक डॉटर्स, और बहुत मोहब्बत से मेरे को और मेरी बीवी को, जो 86 ईयर्स की है, रखा हुआ है। और वो व्यक्ति जो सारी उम्र काम करते हैं, मेहनत से रहते हैं, बच्चों को अच्छी परवरिश देते हैं, अच्छी इंटेग्रिटी की ज़िंदगी देते हैं, उनके बच्चे भी अच्छे बनते हैं, और हम बहुत हैप्पी और कंफर्टेबल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक बार फिर मैं डॉक्टर मग्गो का, प्रोफेसर रविंद्र कुमार का विशेष रूप से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अपने एक्सपीरियंसेस
आपके साथ साझा करने के लिए यहाँ आमंत्रित किया। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू प्रोफेसर जौहर। हमारे साथ में 2 लोग और जो पार्टीशन विक्टिम रहे मौजूद हैं, तो मैं उनसे भी कहूँगी कि अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे साथ साझा करें। हमारे साथ में हैं श्री जगदीश चंद्र गोसाई जी। जी सर, जगदीश चंद्र गोसाई जी को मैं कहूँगी कि वो अपने, मैं सर 1 मिनट में सर इनको देती हूँ एक। सब सज्जनों को नमस्कार। मैं डेरा गाजी खां से आने के बाद दिल्ली किंग्सवे कैंप में रहा। वहाँ से मैं मैट्रिक पास करके आया था और मेरी ज़्यादा लगन रेलवेज़ में थी और मैं रेलवे में अपॉइंटमेंट लेके काम करता रहा। डिफरेंट पोस्टों पे काम किया। काफ़ी मैंने रिसर्च भी की, खोज भी की भी कौन क्या चीज़ कहाँ है कहाँ नहीं। और आखिर में मैं रेलवे का गार्ड बन गया और साथ में रेलवे की यूनियंस में भी रहा। यूनियंस में मैंने कोई तोड़ फोड़ वाला कोई किसी को करने नहीं दिया और सबको यही कहा कि ये हमारी प्रॉपर्टी है और इसकी देखभाल करना हमारा काम है और रेलवे यूनियंस का काम एम्प्लॉइज़ के फ़ायदे के लिए है, ना कि नुकसान के लिए है। और काफ़ी काम करने के बाद, डिफरेंट एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं हर कैटेगरी वाले को मदद करता था और जब भी किसी को मेरी ज़रूरत पड़ती थी मुझे बुलाते थे। मैं फरीदाबाद मेरा हेडक्वार्टर था तो मैं बॉम्बे तक जाता था। तकरीबन हर महीने 2-3 चक्कर मेरे लगा करते थे और काफ़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करने के बाद मैं 1990 में रिटायर हुआ। उसके बाद ही मैं 1-2 साल में ऑनररी उनके सब काम करता रहा और बाद में मैं अपनी रिटायर्ड लाइफ रहा। मेरे बच्चे वेल सेटल्ड हैं। बड़ा लड़का मेरा पब्लिशर है और छोटा भी अब उसके साथ है और हम वेल टू डू हैं, सेटिस्फाइड हैं ज़िंदगी से। और सबसे यही प्रार्थना है कि मेहनत करो और यूनाइटेड रहो। इस वक्त हिंदू कौम को यूनाइटेड रहना बहुत ज़रूरी है और संगठन में शक्ति है, शक्ति को बढ़ाया जाए। जय हिंद। धन्यवाद। जो जगदीश जी ने एक बात कही कि खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, और एक परिचय मैं उनका और भी कराना चाहूँगी। आज जो इनकी पोती हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं साइकोलॉजी में, और वो भी जगदीश जी की तरह बहुत ही मेहनती हैं और बहुत ही कैपेबिलिटी है उनके अंदर, और उनके स्टूडेंट्स भी उनसे बहुत खुश रहते हैं। जगदीश जी को देखकर, आत्माराम जी को देखकर और के.एल. जौहर जी को देखकर भी ये लगता है कि कितने जीवट के लोग थे। सब कुछ छोड़ के आए, परिवार भी छोड़ के आए। किसी के परिवार बचे, किसी के परिवार नहीं बचे, पर जिस जीवट से उन्होंने संघर्ष किया और आज आकर कहते हैं कि हम खुश हैं, हमारे बच्चे अच्छी जगह पर हैं, हमने संघर्ष किया। कुछ लोगों को कोई कंपनसेशन मिला होगा, कुछ ने वो भी नहीं लिया, कुछ ने जानबूझ के वो छोड़ दिया कि हम भिखारी नहीं हैं, हम दोबारा कमा लेंगे। तो इन जीवट के लोग जो आज हमारे बीच में हैं, उनका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, स्वागत करना चाहिए और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। जैसे अभी इन्होंने कहा कि संगठन में शक्ति है, तो संगठन की हमें ज़रूरत है, एक साथ रहने की ज़रूरत है, और अगर हम एक साथ रहे तो शायद भारत दोबारा से कभी वैसी अवस्था में, जैसी पार्टीशन के समय की व्यवस्था थी, उस समय उस अवस्था में नहीं आ पाएगा और हम इसको एक साथ जोड़ के एकजुट रख सकेंगे।
हमारे साथ में आज के अंतिम स्पीकर हैं श्री कृष्णानंद सागर जी, जो पार्टीशन विक्टिम होने के साथ साथ आज ऑथर भी हैं और पब्लिशर भी हैं। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद प्रोफेसर पायल जी। मैंने विभाजन काल का बहुत कुछ देखा है। मेरे पिताजी रेलवे में थे और विभाजन के समय हम लोग कसूर में थे। कसूर लाहौर ज़िले की एक तहसील है। कसूर को रामचंद्र जी के पुत्र कुश ने बसाया था और लाहौर को लव ने बसाया था। वो लवपुर था, यह कुशपुर था। कसूर रेलवे स्टेशन पर 18 अगस्त 1947 को शाम को 4:30 बजे लाहौर से फिरोजपुर जाने के लिए जो गाड़ी आई, उस गाड़ी को काटा गया। मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ। उसी स्टेशन पर बड़ा ज़ोरदार गोली कांड हुआ। उसके बाद वह भी मेरी आंखों के सामने हुआ। हम जैसे कैसे अगले दिन सुबह वहाँ से निकले, सुबह की ट्रेन से फिरोजपुर के लिए। सतलुज से पहले स्टेशन था, यानी अंतिम स्टेशन कह लीजिए, गंडा सिंह वाला। हमने दूर से ही देखा, गाड़ी से, खिड़कियों से, यानी मैंने भी देखा, हालांकि मेरी आयु उस समय 5-6 वर्ष की ही थी। गंडा सिंह वाले स्टेशन पर दोनों तरफ हजारों मुसलमान खड़े थे। सुबह का समय था, लगभग 7 बजे का। तो सूर्य की किरणें जो उनके शस्त्रों पर पड़ रही थीं, वो चमक रहे थे। उनके भाले, तलवारें, छुरे, वो यानी लगभग 1.5-2 किलोमीटर पूर्व पहले से ही उनके हथियारों की चमक हमें दिखाई दे रही थी गाड़ी में। सीधी बात थी कि वो गाड़ी वहाँ पर काटी जानी थी। लेकिन उस गाड़ी में कसूर के सभी रेलवे एम्प्लॉइज़ भी थे, यानी मेरे पिताजी भी थे, अन्य भी थे। तो पहले से अपेक्षा थी रास्ते में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ड्राइवर हिंदू ही था और उसको ये कहता कि ध्यान रखना, अगर ऐसी कुछ हो तो वहाँ गाड़ी खड़ी ही नहीं करनी। तो गाड़ी ने बड़ी कुशलता से, ड्राइवर ने गाड़ी प्लेटफार्म के पास पहुँची तो थोड़ा धीमी कर ली, धीमी की और उसके बाद एकदम तेज़। अब धीमे से हुआ कि उन लोगों को लगा कि हाँ अब ये गाड़ी खड़ी होने वाली है, लेकिन उसके बाद एकदम गाड़ी आ गई। अब गाड़ी चली जा रही है, रुक नहीं रही। यही उनको बड़ा गुस्सा आ रहा था। वो अपनी तलवारों को, भालों को हवा में लहरा रहे थे कि गाड़ी रुक क्यों नहीं रही, अभी हम मारेंगे। लेकिन गाड़ी नहीं रुकी और चल दिया। अगर गाड़ी वहाँ रुकती तो एक भी बचने वाला नहीं था। हम बाद में अमृतसर पहुँचे। अमृतसर में
एक अन्य गार्ड थे, मेरे पिताजी के मित्र थे, हम उनके क्वार्टर में ही रहे। और वो क्वार्टर उनका बिल्कुल रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म के बिल्कुल साथ ही था, तो इसलिए हम फ्रंट पर थे, यानी आगे सामने के सब रेलवे लाइन्स गाड़ियाँ आती हैं सब दिखाई देती थी। अमृतसर रेलवे स्टेशन पर उन दिनों गोलीकांड प्रायः होता रहता था, कभी भी गोली चल जाती थी। अब किस बात पर पता नहीं, लेकिन चलती थी, इसका मतलब गड़बड़ी काफ़ी थी। ऐसे अनेकों परिदृश्य हैं, मैं अब उन सब में नहीं जाता, लेकिन कुछ बातें मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। जो पहला सेशन हुआ और उसके बाद दूसरा हुआ, ये बात आई, कोई बोला नहीं। ये कोई बोला नहीं का मतलब क्या है? क्यों नहीं बोला? इसलिए नहीं बोला कोई कि कोई भी ना बोले, इस प्रकार की का वातावरण बनाया गया, इस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई कि कोई भी ना बोले, सब डर कर रहें। रावलपिंडी में एक थे डॉक्टर हरवंशलाल ओबराय, बहुत बड़े विद्वान थे, शायद आप में से कुछ लोगों को, पुराने लोगों को पता होगा। वो बाद में जालंधर, डीएवी कॉलेज जालंधर में रहे, दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक थे, और उसके बाद बिरला जी उनसे बहुत प्रभावित हुए और बिरला जी उनको रांची में ले गए थे, बीआईटी में। वहाँ उन्होंने उनके लिए अलग से डिपार्टमेंट आरंभ किया, उसका उनको चेयरमैन बनाया। हरवंशलाल ओबराय संघ के कार्यकर्ता थे, और वो बाद में भी 3-4 महीने मुसलमान बनकर वहाँ रहे थे रावलपिंडी में। जो अनेकों लड़कियों को मुसलमान अपहृत करके ले गए थे, उनको वो ढूंढ ढूंढ कर गांवों से और फिर सेना की सहायता से उनको निकाल कर लाते रहे। तो जिन जिन को भी वो लेकर आते थे, उनकी आप बीती लिख लेते थे। बाद में दिल्ली आए, और वो जितने लोगों की वो आप बीतियाँ थीं, उनको उन्होंने पुस्तक रूप दिया, और वो पुस्तक को छपने के लिए प्रेस में दिया। ये 1948 के आरंभ की बात बता रहा हूँ, जो दिल्ली में उन्होंने प्रेस में दी पुस्तक। अब वो कहीं पता लग गया सरकार को, उस प्रेस पर छापा पड़ा, और वो पूरी की पूरी पांडुलिपि ही जब्त कर ली गई 1948 में। इसका अर्थ क्या है? इसका स्पष्ट अर्थ है कि जो सरकार थी उस समय की, वो नहीं चाहती थी कि इस तरह की बातें, घटनाएं लिखित में आए, लोगों को पता लगे। और इसलिए इस मामले में जो उस समय के सत्य हैं वो सामने नहीं आ पाए। व्यक्तिगत रूप से जो जिसने बताया इधर से उधर, वही बातें केवल हैं, लिखित में नहीं है। लिखित में 2 पुस्तकें हैं उस समय की, वैसे 3 हैं। अब वो पुस्तकें कैसे बनी? तो पाकिस्तान पाकिस्तान के नेता बड़े होशियार थे, इसमें तो कोई शक नहीं है, और हमारे नेता उनकी तुलना में, शब्द अच्छा नहीं है लेकिन मैं बोलूँगा, बुद्धू थे। पाकिस्तान गड़बड़ वहाँ हो रही थी, आक्रमण वो कर रहे थे, अत्याचार वो कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे इधर पर, यहाँ के लोग ऐसा कर रहे हैं, यहाँ से मुसलमानों को मारा जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। अब ये जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, वहाँ के गवर्नर ने वगैरह जब काफ़ी कुछ करना, जब प्रचार करना शुरू किया,
तब हमारे यहाँ के नेताओं को होश आई कि भाई ये इनके प्रचार का जवाब देने के लिए हमारे पास भी कुछ तथ्य होने चाहिए। तो तब फिर एक फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी बनाई गई भारत सरकार की तरफ से, और जो लोग उस समय जगह जगह कैंप तो थे ही बहुत सारे, उन कैंपों में कमेटी की ओर से जाकर उस समय जो लोग थे उनके सारी दास्तान जो है वो लिखी गई, उनके बयान लिए गए। हजारों लोगों के लिए गए होंगे, कितनों के लिए गए पता नहीं, लेकिन बहुतों के लिए गए। और वो सारी फिर जस्टिस जी.डी. खोसला, उन्होंने उन सारे बयानों को लेकर करके और आखिर में पुस्तक लिखी थी स्टर्न रेकनिंग नाम से। वो पुस्तक बड़ी फैक्चुअल है। जो भी आप में से विभाजन पर काम कर रहे हों उनको वो पुस्तक जरूर देखनी चाहिए। लेकिन वहां भी एक गड़बड़। गड़बड़ क्या कि जो वातावरण था उस समय, शासकीय वातावरण जिसे कहना चाहिए, हिंदू मुस्लिम एकता, अहिंसा वगैरह वगैरह, तो इसका असर उस पुस्तक पर भी दिखाई देता है, जबकि वो थी ही फैक्ट्स फाइंडिंग। तो वहाँ चीज़ें, कुछ घटनाएं दी हैं उन्होंने पर्टिकुलरली, बाकी सब जनरल चीज़ें की हैं। वहाँ पर इतने लोग मारे गए, वहाँ पर 4 लोग मारे गए, वहाँ पर 10 लोग मारे गए, ये बहुत कम ही एक्चुअल घटनाएं बहुत कम दी गई हैं। एक और पुस्तक उन दिनों निकली, ये जो पाकिस्तान की ओर से प्रचार किया गया, उसमें था कि पंजाब से लोगों को मारा जा रहा है। तो पंजाब से मतलब उन्होंने साफ कहते सिख जो हैं वो मुसलमानों को मार रहे हैं। हिंदू सिख एट्रोसिटीज, मुस्लिम लीग अटैक ऑन हिंदूज एंड सिख्स इन 1947, यह है उस पुस्तक का नाम। तो ये दोनों पुस्तकें 1949-50 में ही पब्लिश हुई थीं। दोनों पुस्तकें बहुत फैक्चुअल हैं, लेकिन दोनों पुस्तकों का उद्देश्य सीमित था। तो ये जो दूसरी पुस्तक आई, इसका भी उद्देश्य सीमित था कि सिखों पर जो पाकिस्तान आरोप लगा रहा है, तो उस आरोप को निरस्त करना, ये उद्देश्य था मुख्य रूप से। जो कुछ उसके अंदर है वो बिल्कुल सत्य है, सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन पूरे फैक्ट्स उसके अंदर भी नहीं लाए गए, जबकि उस समय सब कुछ किया जा सकता था, सब कुछ उपलब्ध था। ये केवल मार खाकर नहीं आए हैं, ये लड़कर आए हैं। यानी आत्मरक्षा का उन्होंने पूर्ण प्रयत्न किया है, जगह जगह पर संघर्ष किए हैं। केवल लुट गए, पिट गए, मर गए, इतनी कहानी नहीं है, यानी ये तो है ही, लेकिन इसके साथ ये भी है यथासंभव उन्होंने संघर्ष किए हैं, और बड़े बड़े जबरदस्त संघर्ष किए हैं। अब ये जब उस समय का इतिहास हम सामने लाएंगे, तो जिन लोगों ने संघर्ष किए हैं, मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं कि विभाजन के बारे में लिखने में कठिनाइयां क्या हैं, क्यों हैं कठिनाइयां। इसलिए हैं कठिनाइयां कि उस समय की जो सरकार थी या सरकारें थीं, वो नहीं चाहती थी कि किसी भी रूप से विभाजन काल की विभीषिकाएं आम लोगों के सामने जाएं। जिनके साथ हुआ वो तो हुआ, लेकिन बाकियों को ना पता लगे, अगली पीढ़ी को ना पता लगे, आगे के लोग ना जाने कुछ भी, इतिहास में से ये लुप्त हो जाए।
ये उनके सामने एक बड़ा स्पष्ट दृष्टिकोण था। और इसमें जो इतिहास लिखे गए उस समय के, उनमें कहीं नाम ही नहीं कुछ, और गलत अवधारणाएं बनाकर इतिहास लिखे गए। 1993 या 94 की बात है, भारतीय इतिहास संकलन समिति के अध्यक्ष थे ठाकुर राम सिंह जी। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि भाई ऐसा है कि विभाजन के समय का जो सत्य इतिहास है वो अभी तक सामने नहीं आया है, और वो तुम लिखो। मैंने उन्होंने कहा जी मेरी पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं लिख सकूं, जबकि मैं चाहता हूं लिखा जाए और ये आवश्यक है, होना चाहिए, लेकिन मैं नहीं लिख सकता, किसी और योग्य व्यक्ति के जिम्मे काम दीजिए। खैर वो बात आई गई हो गई। तो उसके बाद वर्ष 2000 में फिर से उन्होंने बुलाया और फिर कहा कि काम तुम्हें करना है। मैंने कहा जी मेरी स्थिति में तो कोई अंतर आया नहीं है। तो वो कहने लगे देखो स्थिति को तो रखो एक तरफ, ये सोच लो अब तक ये काम नहीं हुआ है, 50 साल से ऊपर हो चुके हैं, लोग जा रहे हैं तेजी से, तुम भी अगर ये काम नहीं करोगे तो विभाजन काल का सत्य इतिहास हमेशा के लिए देश के इतिहास में से गायब हो जाएगा। अब बात उनकी ठीक थी। तो खैर मैंने कहा जी ठीक है मैं लिखूंगा, बस यह है कि समय सीमा मत करना, लेकिन मैं करूंगा। और मैंने उस काम को करना शुरू किया। अब जब मैं लोगों से मिलता था, एक तो ये था मेरे लिए प्लस पॉइंट ये था मैं स्वयं उस हवन कुंड से निकला हुआ, और इसलिए मैं लोगों की बात को समझ सकता था, वो क्या कह रहे हैं या क्या कहना चाह रहे हैं। उन परिस्थितियों को मैं जानता था, मैंने आंखों देखी सब बातें थी। और दूसरी बात है कि मैं पंजाब में रहा था कई वर्ष, और इसलिए मैं बहुत से लोगों को भी जानता था। ये दोनों प्लस पॉइंट्स मेरे पास थे। और दूसरा कि इतिहास में शुरू से मेरी रुचि थी, यानी कॉलेज में इतिहास नहीं लेकिन इतिहास में रुचि थी, और इसलिए मैं पुस्तकें बहुत पढ़ता रहता था, तो वो भी एक जानकारी थी। तो इसलिए विभिन्न लोगों से मिलने मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई। बहुतों को मैं जानता था, और कईयों का है कि एक से मिले तो उसने दो का और बता दिया नाम, उनसे मिले उन्होंने और कोई 2-4 का नाम। तो इस प्रकार से करते करते लगभग 600-700 लोगों से का मैंने साक्षात्कार लिया होगा। उनमें से जो मुझे ऐसे लगे कि इनके बताने में कुछ एग्जैजरेशन हो सकती है वो मैंने छोड़ दिए, या जिनमें लगा मुझे कि कोई तथ्य इसमें नहीं है वो मैंने छोड़ दिए। तो बाकी के 350 लोगों के साक्षात्कार उनको फिर पुस्तक रूप में लाया। विभाजनकालीन भारत के साक्षी इस नाम से वो पुस्तक 4 खंडों में है। इतनी बात कहकर ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।